کلبھوشن کیس کے حوالے سے معروف برطانوی ماہر قانون بیرسٹر امجد ملک نے بھی اظہار خیال کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ آج کے فیصلے سے کلبھوشن کو ملاقات اور نئے ٹرائل کا موقع مل سکتا ہے۔ اس ایشو پر دونوں ممالک کو ایک دوسرے کو بات چیت کرنا ہوگی، اس سے کئی باہمی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، دیکھیے۔ کلبھوشن یادو کا جو کیس ہے بہت ہی انٹرنیشنل امپورٹنس کا معاملہ ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا جس کی کوئی نظیر نہ ہو، اور پاکستان کی جو عدالتیں ہیں یا پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے وہ اس کو ابزارب نہ کر سکے۔ زیادہ سے زیادہ ان کے ری ٹرائل، ان سے سفارت خانے کی ملاقات، ان کے اہل و عیال کی ملاقات، یا ان کو کسی ایسے ٹریبونل کے ذریعے ٹرائل کا کہا جا سکتا ہے جس میں انڈیپینڈنٹ وکلا کی فراہمی اور معاملے کے اوپر آرٹیکل 6 یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹ، جو کہ پاکستان کے آئین میں بھی وہ لبرٹیز ہیں، وہ انشور ہو سکیں اور ایک فیئر ٹرائل ہو سکے۔ حوالگی میرے خیال میں آؤٹ آف کوسچن ہے۔ جو بھی ہونا ہے، ابھی تک تو یہ بھی طے نہیں ہے کہ پاکستان تو اس کو ڈیفینڈ کرنے آن نوٹس آیا ہے۔ کوئی ایسی رضامندی نہیں ہے کہ جیسا کہ دونوں ممالک کے درمیان میں ہونے والے کیسز کے اوپر یہ ہیگ عدالت ہی آخری فیصلے کیا کرے گی، ایسی کوئی جورسڈکشنل ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ اور فائنلی فیصلہ حق میں آنے کا یہ ہے کہ دونوں ممالک کو آپس میں بات چیت کرنی پڑے گی۔ دونوں ممالک کے ایک دوسرے کے پاس قیدی ہیں، تو ایسی کوئی گنجائش یا ایسی کوئی جو کنسیشن ہے وہ دونوں ممالک کی آپس میں بات چیت سے ہی نکل سکتی ہے۔ کلبھوشن یادو کیس کے حوالے سے معروف برطانوی قانون دان بیرسٹر راشد اسلم کہتے ہیں کہ بھارت عالمی عدالت انصاف میں متضاد موقف پیش کر رہا ہے، جس سے پاکستان کی پوزیشن مضبوط ہے۔ عالمی عدالت انصاف کلبھوشن کے لیے کونسلر رسائی کا حکم دے سکتی ہے۔ کلبھوشن کی رہائی ناممکن دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان عدالتی فیصلے کو تسلیم کرنے کا پابند نہیں ہوگا۔ انڈیا کے 4 مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کو انڈر آرٹیکل 36 کونسلر ایکسیس دی جائے اور انڈر وینا کنونشن آف ہیومن رائٹ آف کونسلر ریلیشنز۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کا جو ججمنٹ ہوئی ہے پاکستانی کورٹ سے اس کو نل قرار دیا جائے، مطلب اس کو ختم کر دیا جائے۔ تیسرا اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ یہ اس قسم کے مطالبات ہیں۔ اور چوتھا اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ججمنٹ ہے اس کو ریویو یا ریکنسیڈر کیا جائے۔ اب اس میں وہ دونوں متضاد چیزیں مانگ رہے ہیں، ریویو ریکنسیڈر بھی کہہ رہے ہیں اور نل بھی کہہ رہے ہیں اس کو، ججمنٹ کو۔ اب اس میں پاکستان کا میں یہ سمجھتا ہوں کیس بہت اسٹرانگ ہے، کہ پاکستان نے جو کیس پروسیڈ کیا اس کے مطابق آبویسلی ان پہ ایس پی نوج کے چارجز ہیں، اور جہاں پہ ایس پی نوج کے چارجز ہوتے ہیں وہاں پہ کونسلر ایکسیس معطل ہو جاتی ہے انڈر آرٹیکل 55 آف BCCR۔ اب اس حوالے سے ICJ جو ہے اس کے پاس بھی ایک انوکھا کیس ہے، کیونکہ ماضی میں یہ دیکھنے میں آیا کہ عام شہریوں کے کیس ہوتے تھے، ایس پی نوج کے حوالے سے کیس نہیں تھے۔ تو اس پوری صورتحال میں ICJ میں یہ سمجھتا ہوں کل زیادہ سے زیادہ کونسلر ایکسیس دے سکتا ہے یا پاکستان کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ ریویو اور ریکنسیڈر کریں۔ باقی جو انڈیا کے مطالبات ہیں کہ اس ججمنٹ کو ختم کر دیا جائے یا اس کو فی الفور رہا کیا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کی یہ جورسڈکشن ہے۔ اور دوسری بات جورسڈکشن کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ ICJ کا فیصلہ ماننے کے ہم پابند نہیں ہیں، وہ مینڈیٹری جورسڈکشن نہیں ہے، ان کی ایڈوائزری جورسڈکشن ہے۔ اس حوالے سے اگر وہ ہم پہ کوئی چیز نافذ کرنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم مانیں۔ برمنگھم میں پاکستانی ثقافت کے فروغ کے لیے 3 اور 4 اگست کو وارڈ اینڈ پارک میں رنگوں بھری ثقافتی میلے کا آغاز کیا گیا، جس میں پاک بھارت کبڈی میچ، نیزہ بازی اور ثقافتی ملبوسات کی نمائش کا اہتمام کیا جائے گا۔ نمائندہ 92 نیوز عابد قاسمی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پردیش میں دیس جیسے رنگوں کو نکھارنے کے لیے 3 اور 4 اگست کو بڑے میلے کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ اس سلسلے میں چیئرمین میلہ شوکت محمود کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں آرگنائزر محمد اسحاق، سید نذیر حسین شاہ، محمد سلیم، کونسلر اخلاق حسین، ماجد محمود، ڈیان ڈولڈسن، نمبردار زہیب صادق اور راجہ بشارت سمیت کمیونٹی ارکان نے شرکت کی۔ شرکاء نے کہا کہ اس طرح کے میلے جہاں ثقافتی رنگوں کو اجاگر کرتے ہیں، وہیں
वहीं नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ माइल भी करते हैं। शुरका ने कहा, फैमिली मेले में शरीक हर शख्स की तफरीह के लिए मुनफरिद इंतजामात किए जाएंगे। कौंसलर इखलाक माजिद महमूद और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोशिश है कि नौजवान नस्ल को अपनी सकाफत से मुतारफ करवाएं। Fantastic family event. We have in excess of 15-20,000 people actually turn up. This year it's over 2 days. There's tent pegging, there's volleyball tournament, a football tournament, Robert Wilkinson fun fair for all the family. So do bring them down, bring all your family down. It's a multicultural mega mela for all the communities. On Tuesday in full council, I actually raised it and sent an invitation out to each and every person in Birmingham to come and make this mela a huge success. तारीख को ये पाकिस्तानी कल्चरल और पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करेगा। इसमें टेंट पैगिंग है, ये बहुत खूबसूरत अंदाज में हम अपनी सकाफत को उजागर करने में कामयाब होंगे। The main aim of the Mela is an inclusive event which basically looks at preserving the sport and culture of the subcontinent. So sports such as horse tent pegging and things like kabaddi and other things like the food of different areas of the subcontinent will be served there. Come to the event, and we also want to encourage people living in Birmingham to ask their family and friends outside of Birmingham to come to Birmingham, stay Friday night, stay Saturday night. We'll make a real good event for them. There'll be horse tent pegging, which is Nezabazi, there'll be kabaddi matches, there's going to be a football tournament, a volleyball tournament, and a fairground by Robert Wilkinson. So lots of activities for children and adults alike, so please come to the Mela. If you've got any friends or family with businesses, small businesses, want to encourage them to sponsor the event. असां चाहने हैं कि सारे जितने असाने संगी दोस्त भैन भाई हैं ये मेले नाल इतफाक नाल असां चलां, इतफाक नाल मेला करने हैं। ये 6वां साल है मेले ना, इंशाल्लाह कोशिश पूरी है। जितने साथी थे आए हुए इन सारे बहुत अच्छा तामन। बर्मिंघम मेगा मेला में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ दीगर कम्युनिटीज भी काफी दिलचस्पी ले रही हैं, जिससे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स से दुनिया मुतारफ होगी। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की टैक्स पॉलिसी की तायद की है। शहरियों का कहना है कि हर शख्स को टैक्स देना चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं ब्रसल से नुमाइंदा 92 न्यूज़ तनवीर बुखारी से। जी तनवीर बुखारी। जी, इस वक्त मैं पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी के साथ ब्रिस्टल में खड़ा हूँ और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ अफराद मौजूद हैं और बाकी मुअज़्ज़िज़ीन ब्रिस्टल के भी मौजूद हैं। आइए आज इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और किस हद तक ये लोग उनकी गवर्नमेंट की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। जी महर साहब। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है पाकिस्तान में वो है टैक्स, कि गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है और आवाम टैक्स देने के लिए रेडी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें आवाम का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हम यूज़ टू नहीं हैं टैक्स देने के लिए। हम यहाँ पे टैक्स भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम टैक्स पे करते हैं वो हमारे ऊपर ही लगना है। आवाम के लिए, उस भलाई के लिए वो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, क्योंकि ये जो इशू चल रहे हैं महंगाई के और ये सब कुछ, ये इमरान खान की हुकूमत का कोई कसूर नहीं है इसमें। ये पिछले 60 साल का गंद पड़ा हुआ है। ये जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, इन लोगों ने ना टैक्स लिया है, ना आवाम को शऊर दिया है कि टैक्स है क्या, ना उनको बताया गया है। तो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट कर रही है, जो इमरान खान कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, हम उनके साथ हैं। मेरा अपना ख्याल है कि बिल्कुल टैक्स सबको देना चाहिए और शायद गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कर रही है। इससे पहले थोड़ा सा एक स्टेप शायद मिस हो गया कि वो लोगों को एजुकेट करते कि टैक्स है क्या, और ये आप लोगों के लिए ही है। जो हम लोगों की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि इमरान खान आएंगे, वो जो अमीर लोग हैं उनको थोड़ा नेल डाउन करेंगे, उनसे टैक्सेस लेंगे, उनसे पैसा निकालेंगे और गरीब आदमी पे डालेंगे। लेकिन वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि वो एकदम आके सारा बोझ जो है वो गरीब आदमी पे आ गया है। बाकी मैं 100% इस चीज़ पे एग्री हूँ कि टैक्स देना चाहिए और टैक्स ही वो वाहद वे है जिससे कि इकानमी चल सकती है। ये टैक्स का जो इन्होंने शुरू किया है ये बिल्कुल ठीक है, टैक्स वाकई होना चाहिए। जो भी कारोबार है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, सबको टैक्स देना चाहिए। लेकिन मुश्किलात जो इस वक्त ये हो रही हैं पाकिस्तान में कि जो पब्लिक है वो उसमें अवेयरनेस नहीं है,
उनको अवेयरनेस जो है बहुत कम है इसके मामले में। अगर उनको पहले जो है ये जो कुछ भी PTI इमरान साहब कर रहे हैं वो बहुत जल्दबाजी में ये फैसले कर रहे हैं ताकि अपना लोन जो है वो पेड ऑफ कर सकें, लेकिन ये पैसा निकालना पब्लिक से इतना आसान नहीं है, इसकी कोई प्रोसेस होनी चाहिए, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। अब वक्त चेंज हो रहा है, अब उन्होंने यानी ये तय कर लिया है कि पाकिस्तान पे जो बोझ है, जो कर्ज़े हैं वो उतारने हैं। तो अगर किसी भी मुल्क ने या किसी भी आदमी ने अपने पैरों पे खड़ा होना है तो ये जो कड़वा घूंट है ये भरना पड़ता है। मैं ख़ास तौर पे बिल्कुल भी मुतफिक नहीं हूँ उसकी पॉलिसियों से। इमरान खान बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जो टैक्स पे लोगों पे बोझ डाल रहे हैं, गरीब लोगों पे बोझ डाल रहे हैं। एक तरीक़ाकार होना चाहिए, पहले लोगों को बताना चाहिए कि इस तरह हमने तय करना है, वो ना बताए, सारा कुछ उन्होंने एक गरीब आदमी पे बोझ डाल दिया है। और जिस तरह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उसने मुश्किलात खड़ी की हैं, वो हमारे लिए काबिल तफसीश हैं और हम इस पर मजम्मत करते हैं जो भी उसकी पॉलिसी है। वॉल्थम में फॉरेस्ट टाउन हॉल वॉल्थम स्टेफ में कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ एक मुज़म्मती इजलास बुलाया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए रिटायर्ड जनरल अब्दुल कयूम, ब्रिगेडियर सैयद डार समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। नुमाइंदा 92 न्यूज़ सलीम साबरी की ये रिपोर्ट देखिए। मकबूजा कश्मीर में जारी बदतरीन भारतीय मुजालिम के खिलाफ वॉल्थम फॉरेस्ट टाउन हॉल में एक मुज़म्मती इजलास हुआ, जिसमें रिटायर्ड जनरल अब्दुल कयूम, ब्रिगेडियर सैयद डार, एडमिनिस्ट्रेटर आज़ाद कश्मीर ताहिर मिर्जा और मेजर हसन मलक समेत मुतादद सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुईं। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा, मोदी सरकार गोली और बारूद से कश्मीरियों के हौसले पस्त करना चाहती है, लेकिन कश्मीरी खून के आखिरी कतरे तक अपनी आज़ादी की जदोजहद जारी रखेंगे। इजलास से चेयरमैन ब्रिटिश मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ लेबर चौधरी शौकत अली और साबिक मेयर चौधरी लियाकत अली के अलावा कम्युनिटी के दीगर अहम रहनुमाओं ने भी खिताब किया और कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार किया। कश्मीर को हमें प्रमोट करना चाहिए और अंग्रेज़ों को ये बताना चाहिए। वो कई दफ़ा पूछते हैं कि हमारा इससे अभी क्या कंसर्न है, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि यू वर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और यू शुड बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन आल्सो। हम कॉमनवेल्थ के भी मेंबर्स हैं, हमारा डायस्पोरा यहाँ है, इंडिया का यहाँ है, आपस के अंदर वो है। आप ह्यूमन राइट्स के बड़े अलमबरदार हैं और हमेशा बात करते हैं ह्यूमन राइट्स को ठीक होना चाहिए। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो क्या कश्मीरियों के हकूक़ जो हैं वो उनको नहीं मिलने चाहिए? कश्मीर 70 साल से जल रहा है, हमने उसको बुझाने की कोशिश की है लेकिन वो बुझी नहीं है, आग अभी जल रही है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि चूँकि जब ज़्यादा आग जलती रहे तो फिर उसको बुझाना पड़ता है और इंशाल्लाह बुझ जाएगी। ये वक्त अनकरीब है, इंशाल्लाह हमें आज़ादी मिलेगी। गवर्नमेंट और अपोजिशन को मिल के जो है बैठना चाहिए और पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उन पर गौर व फिक्र करनी चाहिए और तमाम पार्टीज़ को एक पेज भी होना चाहिए। यहाँ की कम्युनिटी ने अपने मसाइल के हवाले से जो हमारे मीरपुर में जो लोग हमारे इलाके से यहाँ हैं उन्होंने अपने मसाइल का जिक्र किया, तो मुश्किलात उन्होंने बयान की है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि अपने मुल्क में अपने वापस जाके उनके जो मसाइल हैं उनको अपनी बुनियादों पे हल कर सकें। बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है पाकिस्तान के सिलसिले में, कश्मीर के सिलसिले में, एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल जो गैदरिंग थी आज। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं पाकिस्तान की और कश्मीर की, उसके जो स्पेशली मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उस पर भी बातचीत हुई है। पाकिस्तान और कश्मीर जो हैं वो लाज़िम व मलज़ूम हैं। जिस तरह कहा गया है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इस वक्त जो वहाँ पे एक इंडिजिनस मूवमेंट चल रही है और हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम सब मिल के ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कश्मीर के काज के लिए अपनी पूरी जो हर तरह की जद्दोजहद है वो करें। मुकर्रीन ने कहा, 72 साल से कश्मीरी आज़ादी के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों को चाहिए कि वो खुद जाकर वहाँ मुशाहिदा करें और भारतीय बर्बरियत रुकवाने में किरदार अदा करें। लंदन में मारूफ पाकिस्तानी आर्टिस्ट तसद्दुक सुहेल के फनपारों पर मुश्तमिल किताब की तकरीब रुनुमाई हुई, जिसमें क्रिकेट लेजेंड ज़हीर अब्बास समेत मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तानी कल्चर और आर्ट पर मुश्तमिल किताब को खूब सराहा गया। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान और वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में।
लंदन के मुकामी होटल में मारूफ मुसव्विर तसद्दुक सुहेल के फनपारों पर मुश्तमिल किताब द वर्ड ऑफ तसद्दुक सुहेल की तकरीब रोनुमाई का एहतमाम किया गया। पुरवकार तकरीब में क्रिकेटर जहीर अब्बास, पाकिस्तान हाई कमीशन के प्रेस मिनिस्टर मुनीर अहमद, किताब की मुसन्निफा माजरी हुसैन, सुलेमान मलिक, शहजादा हयात और मारूफ बरतानवी और पाकिस्तानी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर तसद्दुक सुहेल की जिंदगी और फनपारों समेत उनके काम पर तफसील से गुफ्तगू की गई। तसद्दुक हुसैन की किताब के बारे में उनकी अहलिया मार्जरी हुसैन ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तानी कल्चर और फनकारों समेत उनके काम को न सिर्फ देखा बल्कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों के खुद मालूमाती दौरे भी किए। तकरीब में शुरका के लिए मौसीकी का भी खसूसी इंतजाम किया गया। एक फनकार ने वायलिन पर दिल फरेब धुनें बखेर कर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। माजरी हुसैन की बेटी और उनकी नवासी ने खसूसी तौर पर शुरका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान के इलाके सियाहती और तारीखी एतबार से अहम हैं, जिनको दुनिया भर में मुस्बत अंदाज में पेश किया जाना चाहिए। और इस किताब में मार्जरी हुसैन ने जिस कदर हो सका यादों की सूरत में पाकिस्तानी कल्चर को तस्वीरी और तहरीरी फनपारा बनाने की कोशिश की है। I had the privilege of writing the book. This book is Mr. Nasser Chaudhry. Because Mr. Javed, you know, he has done so much for art by helping the artists in Pakistan, so he deserves the praise, really. And for me, it was a great pleasure because I was very fond of Sohail. Knew him when he was on the railings and watched him after that. So it was a great pleasure to write about him and his success. मैं इस पे 4 साल से अपने आर्टिस्ट के लिए इसके ऊपर काम कर रहा था इनकी लाइफ में, और बहुत हमने कोशिश की और बहुत मेहनत से हम बनाई है, और उनकी ख्वाहिश थी कि हम इसको फर्स्ट टाइम लंदन में लॉन्चिंग करें। तो इसलिए हम इस महफिल में हम लोग सब लोग आए हैं यहाँ पर इसको लॉन्च करने के लिए, और आप मीडिया का सब बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारे ज़हीर बाद साहब आए हैं, मुनीर अहमद साहब आए कॉन्सर्ट, तो मैं सबका दिल की गहराई से बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। So when Pakistani culture, well, I've married into the Pakistani culture, I guess. So Marjorie's my mother-in-law, so I married to her son, and I love the inclusivity, the warmth of the Pakistani culture. Whenever I'm with Pakistanis, I feel embraced by them. So it's very nice. It's a beautifully produced book. I've seen it, like absolutely lovely. The wonderful artwork comes out so well, and Marjorie writes so beautifully. So I think it's a very impressive book and a great achievement from everyone. हमारा जो आर्ट है वो प्रमोट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया में हर जगह यही होता है, जो आर्ट होता है अपने मुल्क का वो दुनिया में फैलाया जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये किताब ख़रीदें और इन्होंने जो बुक लिखी है इसको पढ़ें। इसको पढ़ के बहुत सी चीज़ें लोगों को हासिल होंगी, कुछ इजाफा होगा समझने में, और nothing like promoting Pakistan art to the world. इनकी बुक लॉन्च हुई है और इसको बहुत मशहूर आर्ट क्रिटिक ने लिखा है, मार्जरी हुसैन। मार्जरी हुसैन पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर नाम है। ये पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई थी और निस्फ सेंचुरी से ज़्यादा पाकिस्तान में रह के इन्होंने आर्ट की खिदमत की है। 65 साल उनकी लाहौर पाकिस्तान में कराची में गुजरे हैं, जहाँ पे उन्होंने बहुत सी आर्ट पे किताबें लिखी और बहुत प्रोमिनेंट आर्टिस्ट्स के बारे में किताबें लिखी। ये इनकी बहुत ही अच्छी किताब है और ये तसद्दुक सुहेल को ट्रिब्यूट है उनका। It's wonderful that this occasions happen and that the recognition has been there over a number of years in London, over many years, and it's very beautiful work, and it's lovely to promote Pakistan in this way, in the artistic way. तसद्दुक सुहेल साहब जो हैं, उन्होंने जो कहानी लिखी या पेंटिंग की वो आवाम के लिए और आम आदमी के लिए की। इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो न सिर्फ ज़िंदा रहेंगे बल्कि उनकी याद और हमारे लोग, हम जैसे लोगों को उनको फॉलो करना चाहिए ताकि सारी ज़िंदगी मरने के बाद भी वो ज़िंदा रहें। तकरीब में तसद्दुक सुहेल के फनपारों की नुमाइश भी की गई, जिन्हें हाज़रीन ने बेहद सराहा।
बैंकॉक में ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्थायी एसोसिएशन का माहाना इजलास उनके सदर दफ्तर में हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सफारत खाने के वीज़ा काउंसलर हुमायूं ने खुसूसी शिरकत की। नुमाइंदा 92 न्यूज़ इमरान यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। ओवरसीज पाकिस्तानी स्थाई एसोसिएशन की माहाना मीटिंग का इजलास सदर दफ्तर में हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सफारत खाना के वीज़ा काउंसलर मोहम्मद हुमायूं ने खसूसी शिरकत की, जबकि एसोसिएशन के सदर अब्दुल गफार वारसी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अजहर विर्क और एग्जीक्यूटिव बॉडी ने इन्हें खुशामदीद कहा और फूल पेश किए। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अजहर विर्क ने मीटिंग के एजेंडे के मुताबिक कार्रवाई का आगाज किया। वीज़ा काउंसलर को ऑर्गेनाइजेशन के फलाही कामों के बारे ब्रीफिंग देते हुए सदर अब्दुल गफार वारसी ने कहा कि गुज़श्ता माह IDC में से ओवरस्टे मुतअद्दिद पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापसी और कुछ नादार मरीजों को इलाज मुआवजे के लिए रकूम फराहम की गयी। इजलास में 14 अगस्त की शाम को OPA थाई के प्लेटफॉर्म से जश्न आज़ादी की तकरीब के इनेकाद का ऐलान भी किया गया, जिसे वीज़ा काउंसलर ने खूब सराहा। उन्होंने कहा तमाम पाकिस्तानियों को भाईचारे का सबूत देते हुए फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मोहम्मद हुमायूं ने कहा पाकिस्तानियों के लिए सफारत खाना का दरवाजा हर वक्त खुला है। थाईलैंड की जेलों में फंसे पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी के लिए भी सफारत खाना अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए है और इस सिलसिले में एक ग्रुप रवाना कर दिया गया है, जबकि दूसरा भी जल्द रवाना कर दिया जाएगा। इमरान यूसुफ 92 न्यूज़ बैंकॉक। इटली के शहर बरेशिया में हज रवानगी से पहले हुजाज किराम के लिए अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद हुआ, जिसमें नात खां हजरात ने अक़ीदत के फूल निछावर करके शुरका के दिलों को गरमाया। मुहम्मदिया इस्लामिक सेंटर ब्रीशिया में एक अजीमुशान महफिल का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत सैयद इंतजारुल हसन शाह ने की, जबकि बरतानिया से आए नौजवान स्कॉलर सैयद इसरारुल हसन शाह सरवरी कादरी ने खुसूसी खिताब किया। महफिल में लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई, जबकि इटली के मारूफ सना खानों ने हदिया नात पेश करके शुरका के कलूब को मुनव्वर किया। तकरीब से खिताब में सैयद इंतजारुल हसन शाह और पीर सैयद इसरारुल हसन ने कहा कि हज बैतुल्लाह का शर्फ हासिल होना बहुत बड़ी सआदत है। जब लोग कंकरियां फेंकते हैं, सर मुड़वाते हैं, काबे की ज़ियारत करते हैं, तो अर्श से पुकारने वाला पुकारता है, ये निदा लगाता है उन लोगों के लिए कि तुम अब अपने घरों की तरफ वापस चले जाओ, मैंने तुम्हारे पिछले गुनाह माफ कर दिए, अब आगे से गुनाह ना करना। आखिर में हाजरीन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पाक की ज़ियारत की। दुरूद व सलाम के बाद पीर सैयद इंतसारुल हसन शाह ने खुसूसी दुआ की, जिसके बाद लंगर का एहतमाम भी किया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में हमेशा अहम किरदार रहा है। जब भी कभी मुश्किल वक्त आया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये बात मेंबर कौमी असम्बली जुल्फ़िकार अली भंडर और पाकिस्तान से आए मारूफ कॉलम निगार प्रोफेसर तौफीक बट ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान कही। जर्मनी के शहर रसल्सहाम में बातचीत करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उन्होंने अपनी कौम ते अपने मुल्क ना प्यार है, तो इंशाल्लाह मैं भावें MNA आपोजिशन दा वां, जो भी मेरे दुमे लगेगा मैं ये आवाज़ असम्बली च उठावां। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा पाकिस्तान को हर हवाले से आगे बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान पे जब भी कोई मुसीबत आई, पाकिस्तान को जब भी कोई बड़ा मसला दरपेश हुआ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ इटली यूथ विंग की जानिब से बरेशिया में नौजवानों के लिए एक रोज़ा समर कैंप का इनेकाद हुआ, जिसमें उन्हें मजहबी और सकाफती तरबियत के अलावा खेलों की सरगर्मियाँ भी करवाई गईं। इवेंट में बारबेक्यू का खुसूसी एहतमाम किया गया था। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ इटली ने नौजवानों को मजहब और सकाफत से आगाही देने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें नौजवानों के मजहब और सकाफत से जुड़े रहने की तरबियत दी गई, जबकि बच्चों में खेलों के मुकाबले भी करवाए गए। इस्लामिक सोसाइटी यूथ विंग इटली के सदर आतिफ नजीर ने कहा कि ऐसे इवेंट का मकसद अपनी कम्युनिटी के नौजवानों में बाहमी ज़हनी हम आहंगी और सकाफत को फरोग देना है। तंजीम के इलाकाई सदर हन्नान ताहिर, जनरल सेक्रेटरी अबू बकर और दीगर का कहना था कि
इवेंट में खेलों के मुकाबले के जरिए सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देना है। आज इस्लामिक सोसाइटी यूथ की तरफ से हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसका असल मकसद यही है कि हम जो है ना नौजवानों को किस तरीके से इस कल्चर में रहकर अपनी जो है पाकिस्तान की कल्चर की तरफ हम उसको लाएं और इस्लाम की जो हमारी रवायात हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनकी तरफ जो है उनको बनाएं। अगर हम ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे तो मैं अपने ईमान से कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे जो यूरोप में बड़े हो रहे हैं ये कभी भी फील नहीं करेंगे कि जो हम पहले हमारा एक ज़हन बना हुआ है कि बाहर जाके बच्चे जो हैं अपनी अपनी मर्ज़ी से अपने अपने डिसीजन लेते हैं, ये एक दूसरे से अटैच रहेंगे, एक दूसरे की मोहब्बत और एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलने से इनका अपने कल्चर के साथ वाबस्ता रहना जो है ये हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है और हम इंशाल्लाह इनके लिए हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। लुद्रीनों के मुकाम पे हैं और यहाँ पे सारे जो हमारी यूथ है वो एंजॉय कर रहे हैं, यानी फ़न एंड लर्न। तो ये बच्चों के लिए हमने सारी तफरीह भी जो है अरेंज की है और साथ जो है एक लर्निंग प्रोग्राम भी है। तो इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं, जो है वो खेल रहे हैं और खाने का भी हमारी यूथ ने एहतमाम किया था। मुंतज़मीन का मजीद कहना था कि वो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करते रहेंगे ताकि इटली में मुकीम पाकिस्तानी नौजवानों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जा सके। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।